Good morning student, welcome back to Math for class 11. Today is the exercise 10.2 of question number 11 to 20. Okay, now question number 11. A line perpendicular to the line segment joining the point 1, 0, 2, 3 divide in the ratio 1:n, small n. Find the equation of a line. The equation of a line means a line segment, okay, given line segment, a line perpendicular to the line, perpendicular to the line segment, perpendicular this line and perpendicular to the line segment. ऐसे इस coordinate point 1, 0 and 2, 3, this equation line. Okay, so divide in the ratio 1:, this the 1:n. So find this coordinate point. This is at P, let P and Q is given, and this find the slope of this, slope of line segment m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. This equal to y2, this 3 minus 0 upon 2 minus 1, only 3. Slope of the line, slope of the line, only line. Okay, बट क्या दे रखा है इसमें, परपेंडिकुलर लाइन. तो स्लोप ऑफ perpendicular line means normal, equation of normal, -1 upon m is -1 upon 3. क्लियर, इक्वेशन इसे बाद में यूज करेंगे. ये इक्वेशन पासिंग कहाँ से हो रही है, ये लाइन सेगमेंट किस पर, लाइन पर परपेंडिकुलर है, या लाइन परपेंडिकुलर ऑन लाइन सेगमेंट. क्लियर, तो परपेंडिकुलर तो नॉर्मल की निकालनी इक्वेशन, तो नॉर्मल स्लोप होनी चाहिए, तो नॉर्मल स्लोप इज गिवन. तो इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ से पास हो रही है, दिस पॉइंट से, टी से. तो टी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ टी. तो टी किस में रेशियो, 1:n. तो फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 ny1 अपॉन m प्लस n, इस फॉर्मूला. ओके, तो दिस टी, फाइंड दिस फॉर्मूला. m रेशियो 1, m x2 means 2, n this n और x1 this 1 upon 1 plus n, and second 1 my2 means 3 plus ny1 0 upon 1 plus n. This coordinate of 2 plus n upon 1 plus n, comma 1 into 3 3 और n into 0 this 0, तो 3 upon 1 plus n. This is the coordinate of t. तो ये equation, ये normal equation passing through the point this. So therefore slope is given. Equation of the normal of the line passing through t. So therefore y minus y1 m x minus x1 formula. So use y minus y1 is this 3 upon 1 plus n, m is the slope of normal, -1 upon 3, and x minus x1 2 plus n upon 1 plus n. Okay, let's multiply this 3, this LCM, n plus 1 into y minus 3 upon 1 plus n. This will be equal to minus 1 upon 3 n plus 1 of x minus 2 minus n upon 1 plus n. 1 plus n cancel, multiply 3. So 3n plus 1 y minus 3 3 is 9. This minus bracket n plus 1 of x, this minus plus n plus 2, right? So transfer in this right side, n plus 1 of x plus 3
n plus 1 of y equal to this n plus 2 और this plus 9 कितना हो जाएगा n plus 11. So this is equation n plus 1 of x 3 bracket n plus 1 of y equal to n plus 11. Answer. Okay, this is answer. Next question number 13. Question number 13. 13 important question है सभी जितने का. Find the equation of line passing through the 2,2 and cutting the intercept of the axis whose thumb. So this is a intercept equation x upon a plus y upon b equal to 1. Intercept is okay. This point a, this point b, तो 0, b and coordinate a, 0, 0. तो a b the intercept. Intercept points a, b means a and b, sorry, and sum of the a plus b is given 9. Now b equal to 9 minus a, 9 minus a, या a minus b. a की वैल्यू निकालो, चूंकि a जैसा 9 जैसा लग रहा है ना, तो आप a की वैल्यू निकालो. then a equal to 9 minus b, ये चलेगा. दिस इक्वेशन तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया ना, a इक्वल टू दिस एंड a एंड b की वैल्यू पुट हो गया. पासिंग कहाँ से हो रहा है 2, 2, तो दिस इज इक्वेशन x1 अपॉन a प्लस y1 अपॉन b इक्वल टू 1. तो x1 अपॉन मीन्स सॉरी x1 क्या हो जाएगा 2, 2, तो 2 अपॉन a रहेगा. तो a की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 9 माइनस बी प्लस दिस इज 2 अपॉन बी. बी इक्वल टू क्या दे रखा है बी ओनली इक्वल टू 1. तो फाइंड एलसीएम. देखो 9 माइनस बी इंटू बी, 2b प्लस 2 इंटू 9 माइनस बी इक्वल टू 1 एंड 2b प्लस 18 माइनस 2b इक्वल टू 1 इन b इंटू 9 माइनस बी. शॉर्ट कर दिया मैंने, 2b कट हो गया, 18 इक्वल टू 9b माइनस बी स्क्वेयर लेफ्ट साइड, बी स्क्वेयर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0. ओके, तो b 18 6 3 जा 6 और 3 9, तो b माइनस 6 और b माइनस 3 इक्वल टू 0. तो देन b इक्वल टू 3 और 6. तो इफ b इक्वल टू 3 एंड 6, इफ b इक्वल टू 3, तो a क्या हो जाएगा a इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 6. तो देन a इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट. सो देयरफॉर x अपॉन a की वैल्यू आप पुट कर दो इसमें. इंटरसेप्ट इक्वेशन ये होगी, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू दिस विच इज द इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन. देन x अपॉन a इक्वल टू आप क्या लेंगे 6, तो y इक्वल टू b इक्वल टू 3 इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन इससे बनेगी. देन x अपॉन a इक्वल टू 3 plus y upon b equal to 6 equal to 1 and solve simplify. LCM 6, LCM 6 2s are sorry x only 1 or 3 2 to y equal to 1, x plus 2y equal to 6 first equation. And same LCM 6 2, 2x plus y equal to 1, 2x plus y equal to 6. Okay, you have two equations of a line by the question number 30. Next question number 15. So all are important questions hai beta. The perpendicular from the origin to the line meet it at point this, meet it at point minus 2, 9. Find the equation of the line, this type. Okay,
this is origin, this is y and x axis, a line this, and perpendicular from origin this p, है ना, this is point A. So this point A intersect this point, the -2,9 is given. 15, the origin line meet it at point this. Find the equation of the line perpendicular from the origin, perpendicular, as well as question number 11, right? So perpendicular from the origin to the line meet it at point this. Find the equation of perpendicular distance. This is a perpendicular P formula, right? तो A and B is given, A B given हो, P आपको फाइंड करने का है, तो स्लोप क्या हो जाएगी, इतनी ओमेगा हो जाएगी. ओके, तो जीरो से पास होने वाली, तो दिस इज ए स्लोप, तो स्लोप ही फाइंड कर लेते हैं हम. तो y कहाँ से पास होने वाली है, इससे -2, दिस से, तो स्लोप ऑफ दिस एंगल, तो दिस द स्लोप m इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो जीरो से पास हो रहा है ना, तो 0 0, तो ये हो जाएंगे 0 0 एंड -2,9. तो m इक्वल टू दिस 0 9 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 0, तो -9/2 स्लोप हो गई. ओके, और पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो y माइनस y1 m x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. क्लियर, बट नॉर्मल इक्वेशन है, राइट? हाँ, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल टू द प्लेन. सो राइट, सो दिस इज ए स्लोप ऑफ ए लाइन, और फाइंड क्या करनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल और फाइंड कर लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, चूंकि नॉर्मल की इक्वेशन है परपेंडिकुलर है भाई, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस नॉर्मल, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर और नॉर्मल. सो नॉर्मल की क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है. दिस m1 इक्वल टू -1 अपॉन m, यही फॉर्मूला है ना, -1 अपॉन दिस -9/2, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा फॉर्मूला. सो दिस y माइनस कहाँ से होगा, 0 से, y माइनस 0, m हो जाएगी 2/9, एंड देन x माइनस x1, x1 इज 0, राइट? सो सॉल्व कर दो. दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ 15, नो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दिस, हाँ पास तो इससे हो रहा है ना, -2,9 से पास हो रही है ना, हाँ इससे पास हो रही है, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे, x माइनस 9 एंड दिस माइनस माइनस +2, राइट? हाँ, अरे इससे पास हो रहा है, नॉट जो ओरिजिन, ठीक है, पास तो इससे हो रही है, बोला है ना, परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू ऑन ओरिजिन दिस पॉइंट. तो इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ से, ये वाली लाइन है ना, ये वाली थोड़ा ही है, तो जीरो से पास होगी, ये तो इससे पास हो रहा है ना, तो लाइन है ये L, तो ये कहाँ से पास हो रही है, इस पे पॉइंट आ रहा है ना L, दिस A से पास होगी, राइट? तो y माइनस y1, दिस फॉर्मूला, स्लोप इज नॉर्मल गिवन, तो y माइनस 9 इक्वल टू 2/9 x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 9y 9 9 85 नॉन 81 है ना, 9 2x प्लस 4. बट इट्स वेरी सिंपल, 9 नहीं होगा तो फिर तो 0 माइनस 9 होगा भाई. दिस इज सेकेंड पॉइंट, तो 0 माइनस और 0 प्लस 2, तो -9/2, राइट है? ओके, स्लोप ऑफ दिस, ओके, राइट, 85, तो 2x हो गया, माइनस 9y हो गया, इसको इधर ले आए, और +4 है प्लस 81 इक्वल टू 0, 2x माइनस 9y, और दिस कितना हो गया, 85 इक्वल टू 0, विच इज ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 17 वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस है, ये सॉल्व कर लेने का, इतना ज़्यादा नहीं. 18 19 20, ए बी द मिड पॉइंट, 18 19 एंड 20, तो 18 सेम ही टाइप के क्वेश्चन हैं.
तो आपको 18 मिड पॉइंट है और एच कोमा के दिस राइट है, तो मैं 19 करा देता हूँ, 19 हो जाए। 18 में डाउट हो तो पूछ लेना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो सिंपल है, जैसे ये 19 है वैसे एज वेल 18 है। पॉइंट आर एच कोमा के डिवाइड इन द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो, वैसे 11 टाइप का क्वेश्चन हो गया, 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, और कौन सा पॉइंट है, आर, आर पॉइंट एच कोमा के, लाइन सेगमेंट, अगेन रीड, डिवाइड ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, पॉइंट कहाँ क्लियर किया है उसने, बिटवीन द एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो मीन्स ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन, क्लियर हो गया। ये लाइन है और इंटरसेक्ट किसको कर रही है, एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच वाला लाइन सेगमेंट है और उसके पॉइंट है ये वाला पॉइंट, और आर पॉइंट रेशियो डिवाइड करता है, दिस इज आर एच कोमा के, एच पहले आ रहा है के, और रेशियो क्या बोला है 1 और 2, तो 1 किधर जाएगा 1, एच इधर साइड में होगा ना, दिस पॉइंट और दिस 2 रेशियो, राइट, दिस लाइन सेगमेंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, एक्स एक्सिस होगी, इसका होगा x, 0, चूंकि एक्सिस के बीच में बोला है ना, और दिस 0, y कोऑर्डिनेट होंगे। बट पॉइंट कहाँ है, आर किस में डिवाइड कर रहा है 1:2 में, क्लियर। तो x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्लोप फाइंड करना है, स्लोप के बाद इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर देने का। दिस इज ए लाइन सेगमेंट, दिस, क्लियर, h, k, तो h इन टर्म ऑफ h, k, तो दिस इक्वेशन इज गिवन, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, आर जो बंदे रखा किसमें 1:2, फॉर्मूला mx2 nx1 अपॉन m प्लस n से my2 ny1 अपॉन m प्लस n, राइट, h, k, राइट, h, k पॉइंट इज विल बी इक्वल टू 1 mx2 m 1 डिवाइड दिस 0 m x2 वाला ये होगा, प्लस n हो गया 2 x1 दिस x अपॉन 1 प्लस 2, m1 y2 क्या है y, प्लस n2 और y1 0 अपॉन 1 प्लस 2, दिस h, k इक्वल टू क्या हो गया 2x अपॉन 3, और ये हो गया y अपॉन 3। सो फाइंड x एंड y ना इन टर्म ऑफ h एंड k, सो देयरफॉर 2x अपॉन 3 इक्वल टू h and y upon 3 equal to k, then x equal to 3h upon 2 or y equal to 3k, putting so x comma 0 है, वहाँ क्या बन जाएगा आपका 3h by 2 0, and y 0 y की जगह पर क्या बन जाएगा 0 3k, राइट। अब इसकी स्लोप फाइंड कर लो, और स्लोप के बाद इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, तो कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द लाइन x, 0 मीन्स 3h by 2, 0, तो स्लोप चाहिए m, स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 क्या बन जाएगा ऊपर वाला है ना 0, y वाला, तो y तो 0, y, तो y क्या दे रखा है 3k माइनस 0 अपॉन दिस x क्या हो रहा है 0, x2 माइनस x1 क्या हो गया आपका 3h by 2, दिस इज 3k अपॉन माइनस 3h by 2, 2 ऊपर आ गया 3 कट गया, ये बन गया आपका माइनस 2k अपॉन h, 2k अपॉन h बन गया आपका, राइट है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो स्लोप m आपके पास आ गई, और इक्वेशन पॉइंट किससे पास हो रहा है इस पॉइंट से, तो इक्वेशन लाइन y माइनस y1 m x माइनस x1, या डायरेक्ट आप पुट कर सकते थे ये वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, उसी से डायरेक्ट कर दो, इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, स्लोप निकालने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन डायरेक्ट ही कर दो। ओके, y माइनस बन गया 0, m क्या हो गया ये पूरा वैल्यू रख दो, या फिर ये
माइनस 2k अपॉन h और x माइनस x1 क्या हो गया 3h/2 क्रॉस मल्टीप्लाई hy this hy इक्वल टू माइनस 2kx माइनस माइनस प्लस और ये बन जाएगा 2k इंटू 3h/2 2 कट तो ये हो गया hy माइनस 2kx प्लस हो जाएगा आपका 3kh इसको इधर ले दो 2kx hy equal to 3kh is the equation of a line. Okay, and last question number 20. By using the concept of the equation of line, prove that 3 points are collinear. A 3, 0, B minus 2, minus 2 and C 8, 2. Using concept of equation, not a slope. स्लोप वाला यूज नहीं करने का. स्लोप ऑफ ए इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी दैट इज वो भी राइट होगा बट इसके अकॉर्डिंग है ना उसने इक्वेशन ऑफ लाइन. तो प्लीज यूज द कंसेप्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन देन प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर. सो मीन्स equation of a line passing through AB and equation of line passing through BC of both equation are equal, then 3 points are collinear. Therefore equation of line passing through A to B is equal to equation of line passing through B to C. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी. ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी के तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 0 एंड बी हो गया -2, -2 आई थिंक राइट. So equation of line x1 y1 and x2 y2 y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1 यूज कर लो या फिर स्लोप अलग से निकाल लो. So then find y minus y1 क्या है 0 और y2 -2 -0 x2 -2 और -3 x minus x1 this 3 this y -2 upon -5 x -3 minus plus 5y equal to 2x minus 6. So therefore 2x minus 5y minus 6 equal to 0. And this B and C से find करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन. तो BC तो B and C तो B से -2, -2 and C 8, 2. So y minus y1 हो जाएगा minus plus 2 और x y2 2 minus plus 2 upon 8 minus plus 2 x minus plus 2. Okay, y plus 2 equal to 4 upon 10 और x plus 2 डिवाइड करो सी 2 से 5 हो गया 5y प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 4. ओके, तो 2x को इधर ले लिया 2x इधर ले लिया -5y 2x प्लस फिक्स है नहीं 2x को इसको इधर ले लिया -5y इसको भी इधर ले लिया. तो ये हो जाएंगे -10 प्लस 4 इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वेशन 2x minus 5y और ये हो जाएगा एंड कितना हो जाएगा 6 -6 इक्वल टू 0. और तो बोथ इक्वेशन कैसी आ रही है इक्वल. हाँ, यहाँ लिख दो इक्वेशन ऑफ लाइन BC इक्वेशन ऑफ लाइन सॉरी इधर BC आएगा इधर EB आएगा.
use. Okay, equation of line AB equal to equation of line BC are equal, so therefore A, B, C are collinear. Okay, answer. Complete your exercise. If any doubt you can ask to me. Okay, क्वेश्चन नंबर 18 और इम्पोर्टेंट है आपका, तो आप इसे सॉल्व कर लेने का नहीं. ओके, थैंक यू.